Dear students, we already have studied the meaning and concept of the demand in economics. Let's have a revision. Demand in economics means quantity of a commodity which a person is able to pay, willing to pay at a given price and for a given period of time. Now let's begin with a new topic, that is determinants of demand. Means factors affecting on demand. These are the factors which may increase the demand, which may reduce the demand. They may change the shape and position of the demand curve. And first of all, we'll study the most important factor affecting on demand is price of the commodity. So the most important factor affecting on demand is price of the commodity. Higher the price of a commodity, lower will be the quantity demanded. And when lower is the price, higher will be the quantity demanded. In this way, there is inverse relationship between the price and quantity demanded. Let's have example. It's really very practical. One day my auntie came with a bag full of potato and I asked, "Auntie, why did you buy so much potatoes? इतना सारा potato?" She replied me, "रिजवाना, बहुत सस्ता मिल रहा था. आज कीमत बहुत घट गई, इसलिए मैंने ढेर सारे potatoes खरीदे." It means that ये example बताती है कि when price is low, quantity demanded will be high. और जब वही पोटैटो महंगा हो जाएगा, प्राइस विल इंक्रीज, तो क्या करेंगे लोग? 1 kg खरीदेंगे, 2 kg खरीदेंगे, 3 kg खरीदेंगे. क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देंगे जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगी. टेक अनदर एग्जांपल, ए वेरी सिंपल कमोडिटी, ऑनियन. When the price of onion is low, people buy 1 kg, 2 kg. Means when the price is high, quantity demanded is low. और जब इसी ऑनियन की यही ऑनियन बहुत सस्ता हो जाता है, people buy a full sack of onion. लोग थैले से ऑनियन खरीदते और घर में रखते हैं. In this way, we can say that there is inverse relationship between price and quantity demanded. Dear students, you might have studied and you might have seen and observed that online sellers, they offer a big sale on their end of season or end of season. And after the sale, they earn lakhs and crores of rupees. What does it show? ये बताता है कि when the prices are low, quantity demanded is very high. At the same time, you may also observe in your locality that when any shopkeeper offer for sale, we observe a huge crowd in the shop. It means that when the price is low, quantity demanded is high. और जब there is no offer, when there is no offer, no sale, वही दुकान पर, उसी दुकान पर हमें बहुत कम crowd लगेगा. इसका मतलब है when prices are high, quantity demanded will be low. And I'll come to the next point with the words of Marshall, that price works like a bullet. When the price is high, quantity demanded will be low. And when the price is low, quantity demanded will be high. And this law is applicable to almost all commodities except some few exceptions that I'll discuss later on. Now come to the next determinant of demand, that is income of the consumer. When income of a consumer changes means increases or decreases, we observe its impact both on normal goods and inferior goods. You will ask to me, "Ma'am, what is the meaning of normal good?" So when income of a consumer increases, demand for a commodity increases. When income of a consumer comes down, demand for that commodity comes down. Such a good is called normal goods. और हम ऑब्जर्व करेंगे
कि इकोनॉमी में बहुत ढेर सारी ऐसी कमोडिटीज है कि जब इनकम बढ़ती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बताया है, वहाँ पे मैंने इनकम ऑफ द कंज्यूमर बताया है, पर एनम इनकम, और डिमांड फॉर ड्रेसेस दैट इज ऑल्सो पर एनम। और कपड़ा और क्लॉथ एक ऐसी बेसिक नेसेसिटीज है जो हर एक को पसंद है। हर कोई अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता है, शूटिंग शर्टिंग में रहना पसंद करता है। तो जब एक कंज्यूमर की इनकम जो है 50,000 है पर एनम, तो वो सिर्फ 4 ड्रेसेस का डिमांड करता है। 4 ड्रेसेस उसके लिए सफिशिएंट रहते। यू सी अ टेबल, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ते जा रही है, डिमांड फॉर ड्रेसेस भी बढ़ते जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आता है कि डिमांड इतना बढ़ता है, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रहा है, इनकम इतना बढ़ता है कि वार्डरोब पूरा है तो कपड़ों से भर जाता है। I have seen many of my friends, my relatives and the people I know, ऐसे तमाम लोगों को कि उनके पूरे कबर्ड कपड़ों से फुल है, और एक कबर्ड भर जाता है तो लोग दूसरा खरीदते हैं, ओल्ड ड्रेसेस दूसरों को दे देते। यानी क्लॉथ इज अ नॉर्मल गुड, इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़ जाएगा, और जैसे ही इनकम घटेगी इसी क्लॉथ का, इसी का लोग क्या करेंगे, डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि लोग सिर्फ कपड़े का डिमांड नहीं करते, कपड़े के साथ साथ लोग मैचिंग शूज खरीदेंगे, सॉक्स खरीदेंगे, टाई खरीदेंगे एंड मेनी मोर कमोडिटीज खरीदेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जरा हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी और लोगों का ऑब्जर्वेशन कीजिए कि जब इनकम कम होती है तो लोग खरीदते कितना है, ½ kg फ्रूट, ½ kg वेजिटेबल, ½ लीटर मिल्क, हर चीज का डिमांड कम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोग यही फ्रूट, यही वेजिटेबल और यही मिल्क, इन तमाम चीजों का क्या करते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं। इस तरीके से नॉर्मल गुड इज अ गुड whose demand increases with increase in income and demand decreases with fall in income. Now come to the inferior good. What is the impact of income on inferior goods? जब लोगों की इनकम बहुत कम रहती है, when income of the people is very low, so people go to a ration shop. वो राशन शॉप पे जाते हैं, वहां से गेहूं और चावल खरीदते हैं। क्लॉथ खरीदने का है या और कोई चीज खरीदने का है तो वो चीपर लोकेलिटी में जाते हैं। उन्हें फ्रूट्स खरीदने का है, वेजिटेबल खरीदना है तो वो स्ट्रीट वेंडर से खरीदते हैं, कार्ट वेंडर से खरीदते हैं। यानी व्हेन इनकम इज लो, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इज हाई। एज अगेंस्ट दिस, व्हेन इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस इज दैट people stop going to a ration shop. वो बोलते हैं नहीं, अब हम ओपन शॉप से हमारी तमाम ये ग्रोसरी खरीदते हैं। वो चीपर लोकेलिटी में नहीं जाते अपनी शॉपिंग करने के लिए, वो अच्छे मार्केट में जाते हैं। और इनकम बढ़ती है तो वो बोलते हैं चलो धुलिया, चलो नासिक चलते हैं शॉपिंग के लिए, मुंबई जाते हैं, सूरत जाते हैं, वहां से खरीद के लाएंगे। उनकी बेसिक और डेली नेसेसिटीज के लिए भी वो कोई कार्ट वेंडर और कोई स्ट्रीट वेंडर से लो क्वालिटी का इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदते, बल्कि वो एक अच्छी शॉप पे जाते हैं और गुड क्वालिटी की कमोडिटीज खरीद के लाते हैं। इट मीन्स दैट जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स कम्स डाउन। सो वी कैन कंक्लूड दैट as income of a consumer is low, demand for inferior good क्या रहता है, बहुत ही high रहता है। However, when income increases, demand for inferior goods comes down. Now come to the third point, taste and preferences. Taste and preferences means लोगों की पसंद नापसंद, likes and dislikes. With increase in population, industrialization, urbanization, and much more, globalization means world is related, world is open for us, and
open for the world. Due to globalization, there is a change in the lifestyle of the people. और इसी के साथ साथ लोगों की पसंद नापसंद, टेस्ट और प्रेफरेंस भी बदल गया. When taste goes in favor of a commodity, demand for that commodity increases. And when taste goes against of a commodity, demand for that commodity comes down. Take an example. पहले लोग बाइसिकल बहुत शौक से खरीदते थे, बाइसिकल राइड करते थे, पैदल चलते थे. लेकिन अब लोग साइकिल को खरीदने में बहुत झिझकते हैं. साइकिल का डिमांड बहुत कम हो गया है बिकॉज इट हैज गॉन आउट ऑफ टेस्ट. द टेस्ट हैज गॉन against the commodity and as a result demand has come down. और डिमांड इतना गिर गया कि 3rd June 2020 on the day of cycle, Atlas कंपनी ने अपने साइकिल यूनिट को बंद कर दिया. और अब लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस पसंद क्या हो गई है? मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर. और इस 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का डिमांड बढ़ गया बिकॉज टेस्ट हैज गॉन इन फेवर ऑफ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर. पहले लोग घर की लस्सी और छाछ को पसंद करते थे, लेकिन अब टेस्ट इसके अगेंस्ट में चला गया, इसका डिमांड कम हो गया है. तो डिमांड बढ़ा किसका? लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक पसंद आ गई है, लोगों को 7up पसंद है, कोका कोला पसंद है. आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले लोगों को घर के असली घी के पराठे, साग और सब्जी पसंद थी, लेकिन अब टेस्ट इसके अगेंस्ट में चला गया है, डिमांड कम हो गया है. अब डिमांड होटल फूड का बढ़ गया है और लोगों को ब्रेड, बटर, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज पसंद है. एंड डिमांड फॉर ऑल दिस कमोडिटीज हैव इंक्रीज्ड बिकॉज टेस्ट हैज गॉन इन फेवर ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट्स. इन दिस वे we can say that if taste goes in favor of a commodity, demand for that product increases. And if taste goes against of a commodity, demand for that product comes down.